Hello everyone. Today we will discuss 2024 CSET reading comprehensions. In the previous videos we have discussed 2021, 22 and 23 papers. If you don't watched it, then please go and watch them, because if you covered just at least these 5 papers with me, then I am very sure that you will get the real thing, the real concept that you need to clear and to solve these comprehensions. एंड आई होप जिन्होंने देखा है उन्हें ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल गई होगी कि किस तरह से आपको ये चीज़ें को सॉल्व करना है. राइट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज. Okay, first we will read the question what it has asked. Either it is about assumptions, crucial message or something else. Okay, then we will read the passage and solve the question. Which of the following statement best reflect the most logical and rational inference that can be made from the passage? According to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain, from initial agriculture production to final household consumption. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. ऊपर जो भी हमारे को यहाँ पे गिवन होता है that is this data, ठीक है, what it led to here also. These data and facts are all to support the message that the author wants to convey. Right, we have discussed and clear it in the earlier PYQs also. Let's read the options now. हमें इन्फ्लुएंस बताना है. The current method of food distribution are solely responsible for the loss and wastage of food. This word solely make this statement extremely negative. I mean to say this word make it extreme. The current method of food distribution are solely responsible. When these type of words make the meaning of the statement negative, then we can easily cross out that. This thing we have discussed in the GS paper also. Don't just learn the words that you will see and mark the statement incorrect or correct. Just try to find out the meaning that word is giving to the statement. That will decide whether that statement is wrong or right. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. बिकॉज जब आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को रीड करके लर्न करके, ठीक है, जाते हैं ना, आप उसको क्रॉस आउट कर देते हो, तो काफ़ी हद तक अब तो क्वेश्चंस में आप उसको सॉल्व नहीं ही कर पाओगे. ठीक है, you just have to see the one thing, that is the meaning of the statement, and that is sufficient to solve the questions. Okay, so this you can easily mark the statement incorrect. Land productivity is adversely affected by the prevailing trend of food loss and wastage. देखिए आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क किया, 1 ऑप्शन गया, सी भी गया एंड डी भी गया. ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर आ भी रहा है. एंड सेकेंडली द थिंग इज, यहाँ पे ऊपर हमारे को यही बोला जा रहा था कि लैंड प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू दिस ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज. करेक्ट है, ये चीज़ तो डायरेक्टली बोली हुई है पैसेज में. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट. एब्सोल्युटली यहाँ पे ये बोला हुआ था कि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. ठीक है, तो ये भी होगा. Post harvest technologies to prevent or reduce the loss and wastage are not available. This also negative statement कि कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है. सेकेंडली पैसेज में इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी. ठीक है, तो फोर्थ को भी आप यहाँ से कट आउट करोगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द assumptions. In the same passage, the food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food.
करेक्ट है। स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पैसे से रिलेटेड ना हो या फिर कुछ अलग ही दे रखा हो। ठीक है, सिंपल है, एक्सट्रीम भी नहीं है। वही चीज़ बोली गई है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था ना पैसे जमा है, इनिशियल टू द फाइनल कंजप्शन से, इनिशियल प्रोडक्शन से फाइनल कंजप्शन तक जो चेन है उसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया। Ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. ना अगर यहाँ पे देखो फूड वेस्टेज जो है वो एट होम में मतलब कि जो बेसिक लेवल है, ग्राउंड लेवल पे भी है। ठीक है, एंड पूरी चेन की बात की गई है, मीन्स ठीक है, सप्लाई चेन, थ्रू आउट द सप्लाई चेन की बात की गई है। सो इट इज़ द मोरल एंड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। इफ़ यू विल mark the statement incorrect on the basis of all, then you are making a big mistake. It is also you have to consider this thing also in the GS papers, because यहाँ पे all citizens you will not say कि इस citizen की responsibility नहीं है ये, it is the basic responsibility of everyone। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं बना रहा है, ये सिंपल है। यहाँ पे ऑल लगाने से इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और आप इसका नेगेटिव भी तो करके मतलब क्या इसका उल्टा करके देखो कि हम क्या करेंगे कि इस सोसाइटी के इस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हम ये थोड़ी कहेंगे कि अपर क्लास है, लोअर क्लास है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, इस चीज़ में नहीं बोल सकते। ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है यहाँ से और हमारा बी भी करेक्ट है। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, आपको ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दैट वर्ड्स लाइक सोली, ऑल। ठीक है, यू हैव टू चेक द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द वर्ड इज मेकिंग देयर। नेक्स्ट पैसेज। Which of the following statement best reflect the most logical rational inference that can be made from the passage? Okay, as inflation rises, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. Higher interest rate announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain stable debts while paying more to borrow, government must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. Higher interest rates become inflationary, not disinflationary, because they simply let governments to borrow more to pay rising debt service cost. The risk of monetary unmooring is greater when public debt rises, because interest rate become more important to budget deficits. दोनों को स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक्स cannot bring down inflation without budgetary backing. The effect of monetary policy depend on the fiscal policies pursued by the government. यहाँ से देखिए आप सेकंड स्टेटमेंट को बोलोगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिपेंड है फिजिकल पॉलिसी पे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी भी वर्क करिए, साथ ही साथ फिजिकल पॉलिसी भी वर्क करती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट तो डालती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। अब एक बार पैसेज को यहाँ पे मेरे को दोबारा देखते हैं, एक बार आप भी देखिए। एज इन्फ्लेशन एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो मतलब कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज है लाइक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करना। ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक सिर्फ वर्क कर रहा है एंड गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसीज आती हैं, जो बजटरी बैकिंग होती है साथ के साथ, देखो सेकंड स्टेटमेंट में भी यही चीज़ है। एग्जैक्टली सेकंड स्टेटमेंट भी इस चीज़ को डिफाइन कर रही है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में वर्क कर रही है। ये एक चीज़ दूसरी को इफेक्ट करेगी, एक पॉलिसी लाइक अगर सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दिया, ठीक है, साथ के साथ अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस वगैरह की पॉलिसी उसके साथ साथ नहीं चलाएंगी, ठीक है, उसके अपोजिट में वर्क करेगी। दैट मीन्स अगर दोनों अपोजिट में वर्क करेंगी तो सेंट्रल बैंक के सिर्फ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने से अफेक्ट नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन को डाउन करने में। ठीक है, तो सेम थिंग इज रिटन हेयर। दैट्स वाई जो स्टेटमेंट 2 भी है वही तो यही बोल रही है कि इसमें इसको अफेक्ट कर रहे हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट, बट हेयर इज द वर्ड दैट इज कैन नॉट। अगर इसकी वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट इनकरेक्ट मार्क करेंगे तो गड़बड़ बनेंगी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट को ही डिफाइन कर रही है एक तरह से, जैसे कि ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा होगा, आई थिंक थोड़ा सा ट्राई कीजिए।
इतना मुश्किल नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ड की वजह से इसको यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं मार्क करना है हमें। देखो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है ऊपर भी कि एज इन्फ्लेशन राइजेस इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड। इन्फ्लेशन तो राइज हो रही है, ठीक है, साथ में गवर्नमेंट फ्रीली वर्क कर रही है, स्पेंड कर रही है हाउस होल्ड्स की हेल्प करने के लिए। हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर सपोज टू हेल्प प्रोड्यूस मोडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेब्ट्स while paying more to borrow. Government must कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस। ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को भी तो अपनी स्पेंडिंग्स को कम करना पड़ेगा ना, और अपने टैक्सेस को रेज करना पड़ेगा, तभी इन्फ्लेशन कम होगा। तो सेम थिंग इज रिटन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट सेंट्रल banks cannot bring down inflation without budgetary backing. The same thing is explained in this paragraph also. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। जो इन्फ्रेंस हमसे पूछी जाती है ना वो पैसेज के बेस पे ही होती है, यानी कि जो पैसेज में हमारे को डाटा फैक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें गिवन होती है उसके बेस पे इन्फ्रेंस होती है। एंड अजम्पशंस कैन बी समथिंग थोड़ा सा हटके, जो मतलब कि आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, वो जो इन्फ्रेंस होती है वो पैसेज के ही बेस पे होती है। बट एजम्पशन कैन बी समथिंग हल्का सा डिफरेंस, मतलब कि होता तो उसी के बेस पे, बट डायरेक्टली आपको वो चीज़ पैसेज भी नहीं मिलेगी। बट इन दिस केस यहाँ पे आपको ये चीज़ डायरेक्टली पैसेज में गिवन है, you just have to read the passage carefully and understand what it is trying to say. Okay, next is about the assumptions. Fiscal policies of government are solely responsible for higher prices. Now see, it is ये जो statement बोली गई ये तो बिल्कुल अपोजिट ही होगी जो पैसेज में हमने बात की, या फिर फर्स्ट जिस थर्ड क्वेश्चन में जो हमने बात की उसके अपोजिट ही होगी, तो इस वाले को तो आप कट आउट करोगे। नेक्स्ट, हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ऐसे होती नहीं कि कोई चीज़ किसी को अफेक्ट ही ना करे। सेकेंडली यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह की तो कोई बात ही नहीं थी, तो आप इस चीज़ को भी कट कर सकते हो, तो इसमें डायरेक्ट एज्यूम ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 11th question, which of the following statement best reflect the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Okay, today if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their precincts. The backbone of the system theory is the process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing statics, optimization and an algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spent some of the most ingenious planners who were experts in their domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root into the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differs from the West. Okay, now look at the options. Curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. यहाँ पे कुछ भी ऐसा नेगेटिव या फिर कुछ एक्सट्रीम कुछ भी यूज़ नहीं किया है. We will wait for this. In India, city administration is under bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे वेस्ट की जो सिटीज़ वगैरह उससे रिलेटेड प्लानिंग कैसे है और ये सब उनके डोमेन में ये सब चीज़ों की बात की गई है. इन ओनली द लास्ट लाइन ये चीज़ बोलेगी प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट. ये वेस्ट से डिफर करती है. ठीक है, सिर्फ इतनी लाइन बोली गई इंडिया के बारे में, तो उसके बेसिस पे हम ये ब्यूरोक्रेसी डाल दिया और फॉर्मल ट्रेनिंग अर्बन मैनेजमेंट, और ये साथ में एफिशिएंसी पे भी सवाल उठाया जा रहा है दैट विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Next one. In India, the management of urban areas is a local affair with a chronic problem of insufficient funds. यहाँ पे देखो फंड्स वगैरह की बात डाल दी, अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, लोकल अफेयर्स, ये सब बातें की नहीं है पैसेज में, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा. With high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development in them is very difficult.
सिर्फ इस एक लाइन के बेसिस पे आप इन तीनों स्टेटमेंट में से कुछ भी नहीं पता कर सकते जो बाकी 3 स्टेटमेंट की गई हैं। पैसेज के बेस पे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही अलग बात कर रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये भी कट आउट होगी यहाँ पे। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach, simple, basic and pure statement. So 1 is correct. Okay. Next is about the assumptions. India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. Next is saying कि Indian universities at present have no capacity or potential to impart training in systems approach. This one is incorrect कि कैपेसिटी नहीं और पोटेंशियल नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत ही होगी। फर्स्ट वाले को देखो, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। अब देखो, जैसे कि हमने बात की थी इन्फ्रेंस और एजम्पशन में डिफरेंस क्या है। इन्फ्रेंस हमने कहा था कि पैसेज में जो गिवन है उसके बेस पे करेंगे। बी सी डी आर द स्टेटमेंट्स दैट आर इररेलेवेंट टू द पैसेज, ठीक है। सेकंडली इट इज समथिंग दैट इज आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स प्लस, ठीक है। एंड जो की बात की गई अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, लोकल अफेयर्स, फंड्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें भी गलत हैं। तो ये सब तो बिल्कुल ही एज्यूम भी नहीं की जा सकती, ठीक। और यहाँ पे क्या बात की थी कि सिर्फ वेस्ट से डिफ़र करती हैं, मतलब कि वेस्ट की जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, ये सब की जो अच्छी बात है वो चीज़ें डाली, और इंडिया के बारे में बोला कि वो वेस्ट से डिफ़र करती हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट एज्यूम करना है हमारे को, एजम्पशन हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि इंडिया को नीड है। नीड्स इज अ समथिंग दैट मेक्स द स्टेटमेंट सिंपल, ठीक है। वो उसको हार्श और एक्सट्रीम नहीं बनाती स्टेटमेंट को। अगर यहाँ पे बुराई के उस तरह से, मतलब कि बुरा है इंडिया में, ठीक है, गलत तरीके से करते हैं, तो वो चीज़ हम एज्यूम नहीं करेंगे। बट एज अ पॉजिटिव थिंग कि इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज दैट इज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। दिस स्टेटमेंट इज सिंपल एंड इन द अजम्पशन वी कैन थोड़ा सा इससे, मतलब कि जो मैं बोल रही थी ना कि एक थोड़ा सा हटके, बट वो हटके भी नहीं होता, बट सिंपल होता है और पॉजिटिव भी होता है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो रही होगी। आप इसको थोड़ा सा खुद समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बनेगी, 1 इज द करेक्ट। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको आई थिंक समझ में आना तो चाहिए, बिकॉज इन्फ्रेंस और थोड़ा सा एजम्पशन में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन में, राइट। और कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये भी चेक करना होगा कि एजम्पशन में भी कुछ समथिंग कि आपको डायरेक्टली वो पैसेज में, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बात की, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं कनेक्ट कर पाओगे आप। एजम्पशन में यही है, जो एजम्पशन में हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है वो इसी वजह से है, ठीक है। बट एजम्पशन में भी देखो सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस करने की कोशिश करो कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। इससे आप पैसेज में जब कुछ ऐसा नेगेटिव है ही नहीं, तो उससे आप कोई नेगेटिव स्टेटमेंट और ऐसी स्टेटमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन एक सिंपल और कि भाई एक न्यू टेक्नोलॉजी और समथिंग, इस चीज़ की थोड़ी सी नीड है, नीड तो हो ही सकती है, ठीक है। इसमें इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक दो बार एक क्वेश्चन को जब आप करोगे ना बार बार, तो उसका आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्रक्स क्या चीज़ है, क्या मतलब कि उसमें बताना चाह रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होता ना, उसको आप 2-3 बार कीजिए, थोड़ा गैप करके कीजिए। आज किया, दोबारा आप उस चीज़ को कर रहे प्रैक्टिस में, वो फिर भी गलत हुआ, तो जब आप उसको गलत करोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ उस चीज़ को गलत कर रहे हो और उसमें आपको कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, जो चीज़ गलत होती है उसको याद करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे को सेम ही क्वेश्चन मिलने वाला है वहाँ पे। उसको याद नहीं करना है, हमें समझने की ट्राई करनी है कि कैसे उस चीज़ को हमें करना चाहिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following statement best reflect the central idea of the passage? Not every voice on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be. Okay. Constructed as a marketplace of views, social media ensures
instant access to information. ओके, एक बार सभी को रीड करते हैं. सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स. सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज. ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं है कि इसको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए. पैसेज के का आइडिया ही नहीं है. पैसेज में ये बोल रखा है कि उस चीज़ का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, लाइक पॉलिटिक्स में और समथिंग एल्स. इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ. सोशल लाइफ से भी इस चीज़ को देखो, एक सेकेंड, कहाँ गए भाई. आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है. दैट मीन्स अनएविटेबल. ठीक है, मतलब कि वो चीज़ इसके लिए सोशल मीडिया और वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ के बारे में पैसेज नहीं था. इसको भी आप कट आउट कर सकते हो यहाँ से. हमारे पास 2 बचे हैं यहाँ से. ओके, अब लुक एट द पैसेज नाउ अगेन. मैं दोबारा पैसेज इसलिए भी करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा उस चीज़ का जो मैसेज है ना, आधा अधूरा जब समझ आया. आप भी एक बार रीड कीजिए, मैं भी दोबारा करती हूँ. ओके, हो गया. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सेम काइंड ऑफ वॉइस सभी को नहीं मिल रही सोशल मीडिया पे भी. लाइक जिनके पास हाई कैपिटल है पे करने के लिए, वो ज़्यादा स्पेस मिलता है उनको अपने ओपिनियंस के लिए. ठीक है, वो बाय कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी वॉइस मतलब कि लाउडर वॉइस की तरह वो दिखते हैं. ठीक है, वो फिर वही इन्फ्लुएंस करेगी वही चीज़. ऐसा ही फिर इसका एग्जाम्पल दिया पॉलिटिकल कोर्स में. ठीक है, कि कैसे अपोनेंट के अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है. ओके, और फिर वो बता रहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक है, प्रमोशन तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गया रह गया. दैट जनरेट्स मोर यूजर एंगेजमेंट एंड हाउ विदाउट रिगार्डिंग दैट हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट मे बी. ठीक है, अब इनमें देखते हैं हम कौन सा करेक्ट लगेगा. कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यू, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस. इट इज़ समथिंग दैट इज सेइंग मतलब कि इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का एक्सेस. दैट मीन्स इट इज़ in a little way showing the positive side. And but in the B option social media are not ideal or moral institution. यही बात तो बता रही थी यहाँ पे कि विदाउट रिगार्डिंग दिस. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूज़र एंगेजमेंट और प्रमोशन ऑफ कंटेंट की जैसे यूज़ किया जा रहा है सिर्फ. तो यही तो बात की जा रही है कि मोरल इंस्टीट्यूशन नहीं है बट प्रोडक्ट बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट. दैट इज ओवरऑल दैट इज सेइंग इट इन द पैसेज. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट वन हियर. जब आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होना, लाइक सी और डी को आप कट कर लेते हो. 2 ऑप्शंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कट आउट कर ही लेते हैं. ठीक है, फिर 2 ऑप्शंस अगर आपको कहीं आप फंस रहे हो तो एक बार पैसेज का थोड़ा सा दोबारा उस चीज़ को हल्का सा रीड करने की कोशिश करो. वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि वो उसकी पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, नेगेटिव साइड बता रहे हैं, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द assumptions. Internet is not inclusive enough. Internet can adversely affect the quality of politics in a country. यहाँ से आप क्या एज्यूम कर सकते हो वो चीज़ बतानी है. अब पॉलिटिक्स देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट. वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे ही रखा था कि पॉलिटिक्स में कैसे उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो ये अफेक्ट कर सकता है क्वालिटी को. ठीक है, बात है. इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव, फर्स्ट लाइन में यही बोला था कि इंक्लूसिव नहीं है. जिसके पास हाई कैपिटल है उसकी वॉइस लाउडर है. ठीक है, तो सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है. सी इज द राइट वन. नेक्स्ट इज assumptions and central idea बताने. By the children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age range of 13 years to 15. But in our country, about a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do basic arithmetic operations like division. Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till they are 18. For many families, these children are the first from their families ever to get this far in school. Parents and children expect that such graduates from school will go on to high school and college. Hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on curricular expectations of class 8. Okay.
Now, for effective school education, parents have greater role than the government. This is something that is irrelevant about the passage कि पेरेंट्स का रोल और गवर्नमेंट का रोल, ये तो कुछ भी बात नहीं है इसमें, तो ये वाला तो कट हो जाएगा डायरेक्टली. School curriculum that conforms to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issue brought out. देखिए, अब हमने पैसेज में ऊपर तो ये सारा फैक्ट्स डाटा जो भी था, लास्ट वाली लाइन को देखिए. ऑन द अदर हैंड, यहाँ से जो कनेक्टिंग वर्ड्स है ना, वहाँ से आपको डायरेक्टली मैसेज पता लग जाता है. एबिलिटीज़ इन टर्म ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज आर फार लोअर देन दे शुड बी. ठीक है, तो ये चीज़ एक थोड़ी सी जो एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है कि जो कॉम्पिटेंसीज एबिलिटीज़ होनी चाहिए एकेडमिक्स की, वो फार लोअर हैं जो होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में. ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि एंटायर कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म होना चाहिए जिससे इशू को आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो ये चीज़ पैसेज से आप डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन यहाँ से कैसे आप एज्यूम करोगे? सॉल्यूशन की तो कहीं पे भी कोई आइडिया हिंट कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट गिवन है. सो डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज सेंट्रल आइडिया. टुडे इरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी इन द कंट्री. पुअर्टी के बारे में है ही नहीं, वैसे तो कट जाएगा. इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन. रॉन्ग है. मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट एंड टीचर इज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव चिल्ड्रन एकेडमिक्स. गलत है, कुछ भी नहीं है. Public policy should ensure that competencies and achievement of young people are aligned with their expectations. India is not going to take advantage of the demographic dividend unless some school pass outs go back to it. देखो डी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही अलग सी वो बात कर दी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज जब तक जो स्कूल पास आउट्स हैं वो एग्रीकल्चर में नहीं जा सकते. ये तो गलत बात है बिल्कुल ही. सो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचा हमारे पास. मैं अभी सी के बारे में श्योर नहीं थी जब मैंने इसको रीड किया. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ के मैं आगे बढ़ी, फिर डी को पढ़ा तो इस बारे में श्योर थी कि डी इनकरेक्ट है. देखो जैसे मैंने ए को, बी को और डी को पढ़ा तो डायरेक्टली पता चलता गया कि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो सी यहाँ पे बची हमारे पास. तो काफ़ी क्वेश्चंस में जहाँ पे आप अटकते हो ना, उनमें कई बार ये पता आपको डायरेक्टली में भी नहीं पता हो कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि कौन सी इनकरेक्ट बनाई हुई है और उसी से आपका आंसर आपको पता लग जाएगा. ठीक है, एंड सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट, asking about the statement best reflect the thinking of the author about the science. Okay. We take it for granted now that science has a social responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they can acknowledge was to tell the truth. The idea that science is a social enterprise is modern, and it begins at the Industrial Revolution. We are surprised that we can't trace a social sense further back, because we nurse the illusion that Industrial Revolution ended our golden age. Because we nurse the illusion. Okay. एक बार सभी ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं. Science must value the commitment of the scientist. देखो इस बारे में तो कुछ नहीं. साइंस और एक मॉरल जो चीज़ है उस चीज़ के बारे में चल रही है बात यहाँ पे. ठीक है, ट्रुथ, साइंस पहले ट्रुथ के बारे में बात थी, अब सोशल जो कंसेप्ट है वो नया है मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ये चीज़ें बात की थी. तो साइंस और साइंटिस्ट की कमिटमेंट के बारे में कोई बात नहीं थी, तो कट हो जाएगा. साइंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल. दिस इज समथिंग दैट इज़ कुछ भी बात नहीं की गई कि साइंटिफिक अवेयरनेस प्रमोट करनी है पीपल में. ठीक है, सिविलाइज सोसाइटी का प्रोडक्ट है, ऐसा भी कुछ नहीं है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट. ये ऑप्शन जो है वो सेंटर पॉइंट में किस चीज़ को रख रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में तो पैराग्राफ है नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा. साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. दिस इज समथिंग दैट साइंस आ गया, ट्रुथ आ गया एंड सोशल वेलफेयर, ये तीनों चीज़ों के बारे में ही बात थी. बाकी तीन स्टेटमेंट आपको पढ़ के लगी कि गलत है, सिर्फ बचा ऑप्शन डी हमारे पास, दैट इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट. The following is are empathetically conveyed by the author. Message है इसका, and here are the assumptions also.
Look at the passage. The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like more epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind, and to treat the former as some abstract third party, which can sometimes be praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. Science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience. Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization has been dominated by international conflicts. Is this the inevitable result of the progress of science, or does the fault lie elsewhere? इस क्वेश्चन से ये आइडिया मिल रहा है कि पैसेज किस बारे में. ओके, ऑथर का देख लेते हैं अब क्या है. विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू exist till today. It is the science that will ultimately determine the destiny of the mankind. Both these statements are negative and extreme also. यहाँ पे बोल रहे कि साइंस के बिना डेस्टिनी है ही नहीं, साइंस के बिना मैनकाइंड जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था एग्जिस्ट करना. ठीक है, तो एग्जिस्ट करना, तो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट. ऐसा कुछ भी पैसेज में इस बारे में तो बात ही नहीं की जा रही. ठीक है, जो ये इस चीज़ से पता लग रहा है कि मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द कन्वीनियंस. ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ से आइडिया मिल रहा है कि पैसेज में क्या बात की जा रही है. अगला हम एजम्पशंस की बात करते हैं. द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. देखो, क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन था. क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो साइंस की वजह से है जो भी ये डिजास्टर्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर इसका रीज़न कहीं हो रहा है. तो यहाँ पे पैसेज में जो भी बातें की गई हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की गई थी. तो इनमें से आप ये चीज़ जो पैराग्राफ था ये नेगेटिव वे नहीं शो कर रहा था साइंस का, और इसमें आपने ये यहाँ पे इस पॉइंट में ये चीज़ एज्यूम कर ली गई है कि जो भी हॉरर्स है मॉडर्न लाइफ के ये रिजल्ट है साइंस की प्रोग्रेस का. सो इट इज़ नॉट करेक्ट. The aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. Absolutely यही तो बात की जा रही है. ओवरऑल जो मैसेज निकल रहा है, इसका निचोड़ जो निकल रहा है पैसेज का, वो यही तो है कि जो ट्रुथ है वो तो यही है कि साइंस में मतलब कि साइंस किस तरह से वर्क करेगी ये इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि मैन उसको कैसे यूज़ कर रहा है. राइट, इज़ व्हाट मैन हैज़ मेड इट, वैसे ही हो रहा है. ठीक है, तो 2 इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ बी. Next is when we meet other people while we travel, we learn to differentiate between. Okay. Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love, and honor. Justice, love and honor, courtesy and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously moulded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. जो लास्ट लाइन बोल रहा है, आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज इज परहैप्स द गेन ऑफ ट्रैवल. ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा है, अभी देख लेते हैं. वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटीज एंड नेशनल, लोकल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, फ्रेंड्स एंड फोर्स. दुश्मन और दोस्तों की कोई बात नहीं की गई है, नेशनल और कम्युनिटीज़ की भी बात नहीं है. ठीक है, इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग की भी ये बात नहीं. इसमें बात है कि जो वैल्यूज़ हर जगह पे काम आपको आएंगी, जो ये बोल रहा है कि जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी, ये सब चीज़ें आप फिर वो किसी भी जगह पे आप जाओ. ठीक है, तो ये होती है फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ जिस जो पर्सन गेन करता है थ्रू आउट जब वो ट्रैवल करता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Next is assumptions on the same passage. Travel leads to an understanding of humans. Travel helps those who wish to learn fundamental common values.
Okay. A person with long experience in travel can resolve differences amongst people. देखिए सेकंड वाले स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली वहीं से सेम है. ट्रैवल लेड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस. और एक बार फर्स्ट और थर्ड देखिए. पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, हमें वहाँ से पैसेज से क्या बात मेन जो पता चली थी वो थी अबाउट द कॉमन वैल्यूज दैट आर, मतलब कि जो सिंपल एंड प्योर थिंग्स होती हैं जैसे कि लव, काइंडनेस, क्षमाशीलता और ये सब. ठीक है. दो मतलब कि जो वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज हर जगह पे जो काम आती हैं पर्सन के. ठीक है. वो ये सब चीज़ें सीखता है हर जगह पे जब घूमता है, ट्रैवल करता है. एंड यहाँ पे बात कर रहा है कि कैन रिजॉल्व. ये चीज़ आप एज्यूम नहीं कर सकते कि जो जिसका लॉन्ग एक्सपीरियंस है ट्रैवल में वो रिजॉल्व कर सकता है डिफरेंसेस लोगों के बीच के. फर्स्ट ऑफ ऑल तो द थिंग इज़ कि कौन पर्सन उस चीज़ को समझ पाता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है. एंड कोई समझ के भी उस चीज़ को रिजॉल्व करने, मतलब कि ये चीज़ इनडायरेक्ट है पैसेज से, ये चीज़ आप वहाँ से एज्यूम नहीं करोगे. ठीक है. एंड द फर्स्ट वन इज ट्रैवल लेड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे बोला कि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ह्यूमंस की. ऑब्वियसली जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो कहीं कहीं के डिफरेंट एरियाज़ के और अलग देशों में या फिर अलग जगहों के लोगों से मिलते हो, तो एक ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बारे में वो तो डेवलप होती है. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. A and B, that is 1 and 2, so A is the correct one. Next is which of the following statement best reflect the most logical rational inference that can be made from the passage. Okay. And also assumptions. Conventional classrooms, by emphasizing fixed duration over learning effectiveness, resign themselves to variable outcomes. The tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration. In the end, a few learners shine, some survive, and the rest are left behind. After the fixed duration, the classroom models move on, with not a thought spared and those left behind for those who left behind. This is how we end up with 10% employability in our graduates after a decade and half of formal education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skilled education will not produce different results. ठीक है. In conventional classroom learning, the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. Next is saying conventional classroom encourage one size fits all approach and stamp out all differentiation. देखिए यहाँ पे यही तो बात की जा रही है कि जिसमें फिक्स्ड ड्यूरेशन, एम्फेसाइज किस चीज़ पे करते हैं, फिक्स्ड ड्यूरेशन, ना कि ओवर किस चीज़ के ओवर, लर्निंग इफेक्टिवनेस के. और सभी के लिए सेम ड्यूरेशन है, सेम लेक्चर है. ठीक है. एंड इसमें क्या होता है, कुछ शाइन करते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं और काफ़ी सारे जो बच जाते हैं वो लेफ्ट आउट, पीछे रह जाते हैं. ठीक है. तो और यही दोनों जो ये हैं स्टेटमेंट्स, इनमें यही बोल रहे हैं कि एक जो स्टाइल है उसी से सभी को पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम्स में, कन्वेंशनल क्लासरूम में. और इस वाले में क्या बोल रहा है, सेंट्रल गोल इज duration of learning rather than attainment of competency, that is said in the first line. So option C is the correct one. Next is assumptions. As a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, India does not need to change. ये तो पैसेज के उल्टी बात की जा रही है ना, तो ये कट हो जाएगा. इवन विद इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम स्टाइल ऑफ एजुकेशन, इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. ये भी उसके अपोजिट बात की जा रही है, जो लास्ट में बोली गई थी हमें लाइन, उसके अपोजिट है. आप बोल रहे हैं कि सफिशिएंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दैट इज डी इज द राइट वन. नेक्स्ट, assumptions, central idea. Okay. When a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between parents and child, since the latter consider himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power.
love of power. Okay, parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. The options they express, however, are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret. Okay, काफ़ी सब ओके देखते हैं. The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. The adolescents of modern time does not have much respect for parents. यहाँ पे देखिए सेकंड वाले स्टेटमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट और पैसेज से मतलब कि अपोजिट ही है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा पैसेज के रिस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं है जिसको हम एज्यूम करेंगे. ठीक है. एंड फर्स्ट वन इज सेइंग कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते. ठीक है. और बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव, डोमिनेटिंग फील होता है इस तरह से. और पैसेज में यही बात की जा रही है कि दोनों यहाँ पे क्योंकि वो अपने पुराने उन्हीं आइडियाज़ को और उन्हीं थॉट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे इसके बारे में बात भी की गई है. डिस्गाइज फॉर लव ऑफ पावर. ठीक है. एंड ऑप्शंस दे एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे. ठीक है. और जिसकी वजह से फिर वो सीक्रेटली वर्क करते हैं. तो 43rd का हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है. Central idea. Parents in general way may not be of much help when children are on their way to becoming adults. इसमें बोल रहे हैं कि हेल्प नहीं कर सकते. सेंट्रल आइडिया इस बारे में नहीं है कि वो हेल्प नहीं कर सकते. When children reach adolescence, involvement of parents in their lives is unnecessary. unnecessary मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ये भी गलत है. मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ब्रिंगिंग, न्यूक्लियर फैमिलीज का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है और वो कैपेबल भी नहीं है ब्रिंग करने के लिए, ये भी गलत बात बोल रखे हैं. इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न, डिसोबीडेंट एंड केयरलेस. ये तो बात ही नहीं थी यहाँ पे कहीं कि वो डिसोबीडेंट हैं, केयरलेस हैं. एक बार दोबारा चेक करते हैं. ये वाला तो नहीं है कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में स्टबर्न होते हैं. पेरेंट्स और मतलब कि चिल्ड्रन के बीच की बात चल रही थी ना. और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का भी कोई कंसेप्ट नहीं गिवन है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है पेरेंट्स की, ये भी गलत है. पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर. ओके भैया, यही वाला बचा हमारे पास सिर्फ जो करेक्ट है. यहाँ पे बोल पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, मतलब कंप्लीटली भी नहीं बोल रहे हैं कि हेल्प ही नहीं कर सकते, बट मे नॉट बी, मे लगाया ना, उस चीज़ को थोड़ा हल्का किया. व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स, जब वो उस एडल्ट बनने की वे में तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते. ठीक है. बाकी सभी ऑप्शंस में ए ही करेक्ट बनता है. ठीक है. और तो बी सी डी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट बनाए गए हैं. तो ए इज़ द वन दैट इज़ समहाउ एक्सप्लेनिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज ऑल्सो. ठीक है. और इसको एक्सट्रीम भी नहीं बनाएंगे, हल्का सा यहाँ पे मे लगा के इस चीज़ को बोल दिया गया है कि वो हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. ठीक है. वैसे भी क्योंकि आइडियाज़ दोनों के मैच नहीं होते हैं एंड हैंडल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है. चलिए. Which of the following statement best reflect the most logical, rational, practical suggestion implied by the passage. Suggestion क्या गिवन है? बस एक ही है, छोटू सा है. अच्छा. When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mixed into underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium and formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed the scientists. Now एक बार options को भी पढ़ लेते हैं. It is cheap and practical method to produce limestone at commercial level for building purpose. ये लाइमस्टोन के बारे में नहीं है, वो तो एक एग्जाम मतलब कि लास्ट में क्या था. एंड स्पेशली ये जो बोल रहे हैं कि चीप और प्रैक्टिकल मेथड, इस चीज़ के बारे में भी नहीं है कि चीप और वगैरह. ठीक. और बिल्डिंग पर्पस का भी कोई काम नहीं था यहाँ पे, तो ये कट हो जाएगा. दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. Basalt rocks can be made a good source of calcium magnesium minerals by this method. Good rock dissolving acid can be produced by mixing. यार एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको.
International team of scientists found carbon dioxide and water mixed into underground this still dissolves calcium magnesium and mix. ओके ये जो बोला कि जब इन्होंने ये किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया इन टू अंडरग्राउंड बेसाल्ट रॉक, तो एसिडिक मिक्सचर ने क्या किया, डिसॉल्व किया रॉक्स कैल्शियम और मैग्नीशियम को एंड फॉर्म कर दिया लाइमस्टोन। बेसिकली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया स्टोन में, राइट। तो यही तो बात कर रहे हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ही तो हुआ ना यहाँ पे, जब इस चीज़ से ये बोला ना कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन एंड दिस वन इज सेड अबाउट इन दिस बी ऑप्शन। आगे भी पढ़ लेते हैं, बेसाल्ट रॉक्स कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। This is not about the source of calcium magnesium, it is about basically लगा के जो लास्ट लाइन है, converted carbon dioxide converted into stone and good rock dissolving acid can be produced, ये चीज़ के बारे में भी नहीं। so B is the correct one। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये वाली उसमें भी तो आती है ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, GS1 वाले में भी एक आधे क्वेश्चन में हेल्प कर जाते हैं यहाँ से भी। ओके, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made। Geographers analyzed 175 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface, and found that gained icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in Southern Ocean. The researchers discovered that melting water from gained icebergs, which contain iron and other nutrients, supports hitherto unexpectedly high level of phytoplankton growth. All right. Look at the options now. Gained icebergs have a bearing on primary productivity and food chains of the Southern Ocean। यही तो बोल रहा है मैं, यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में, gained icebergs have bearing on primary productivity and food chains of the Southern Ocean। This one is said about this here। जब वो मेल्ट हो रहा है तो वहाँ से आयरन कंटेन होता है, उसमें आयरन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, दैट हेल्प इन फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, दैट इज सेड इन द फर्स्ट ऑप्शन, सो दिस वन इज करेक्ट। मेल्टिंग ऑफ gained icebergs can produce climate change effects and impact water world fisheries। Absolutely, this is the indirect क्या, यही तो बात है यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैन लगाया और मैं से भी यहाँ पे इन चीज़ों में भी यहाँ पे भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं इसको सॉल्व करने में। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। So both 1 and 2 are correct, so C is the right one। Next is, which of the following statement best reflect the most logical, rational, practical message conveyed by the passage? Okay, evolution has endowed caterpillars that feed on corn with a unique ability. Caterpillars, they can induce the plant to turn off its defense against insect predators. They help caterpillar to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is caterpillar's faces and or frass. The find could throw new light on compounds associated with plant response to pathogens like fungi or bacteria। ठीक है, मैसेज देखते हैं। फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर टू फीड ऑन वीड्स। फार्मर्स का तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, तो ये वाला कट जाएगा, फार्मर्स की कोई बात नहीं। फाइंडिंग्स कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी, क्लिनिक्स में इस चीज़ की हेल्प के बारे में भी कुछ नहीं है। दीज फाइंडिंग्स कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। कैटरपिलर्स पेस्टिसाइड्स की भी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको भी कट आउट करो। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी अ प्रेडेटर ऑफ द अदर प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की भी बात है, चारों को ही कट आउट। दोबारा देखते हैं एक बार थोड़ा सा पैसेज को, यहाँ तक तो ये ठीक है। कैटरपिलर्स ईट मोर एंड ग्रो फास्टर, ठीक है। द एजेंट्स दैट कोज द अफेक्ट, उसका नाम बताया। द फाउंड, यहाँ से मेन है जो चीज़ है आगे। द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंगी और बैक्टीरिया। सो फार्मर्स वाला तो बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है कि फार्मर्स कैन यूज दैम टू फीड ऑन वीड्स, तो इस चीज़ का कुछ रिलेशन नहीं बनता। प्रैक्टिकल रैशनल मैसेज, ओके। द फाइंडिंग्स कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबायल कंपाउंड्स। दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड। गाइज देखो, जो हम उसमें पढ़ते हैं ना GS में,
बी और सी ऑप्शन में से एक मिलेगा हमें, बिकॉज बोथ दिस थिंग्स आर मतलब कि सेम स्टार्टिंग है, ठीक है, सेम थिंग है, बस थोड़ा सा लास्ट में जो चीज़ है उस चीज़ को चेंज किया गया, एंड दिस इज़ टू मेक द एस्पिरेंट्स कन्फ्यूज। अब ये वाले दोनों में से आप पढ़ सकते हो। ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ फार्मर्स का तो वैसे भी कोई रूल नहीं, इनको कट कर सकते हैं आप यहाँ से। इसको देखते हैं। द फाइंडिंग्स कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स या ओके। देखो कैटरपिलर, यहाँ पे क्या बात की जा रही थी कि कैटरपिलर जो उनका प्लांट का वो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट इंसेक्ट प्रीडेटर्स, उसको यहाँ पे ये करते, दे कैन इंड्यूस टर्न ऑफ करने में, ठीक है। एंड द सेम थिंग इज अबाउट द इंसेक्ट्स के बारे, पेस्टिसाइड्स फॉर द इंसेक्ट्स। और यहाँ पे क्लिनिक्स की बात की जा रही है, यहाँ पे ऑर्गेनिकल इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड की बात करी है। कैन इस फाइंडिंग, जो ये फाइंडिंग यहाँ से निकली है उसके बेस पे क्या हेल्प कर सकते हैं। फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, बी और सी में से आप यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिए क्या चीज़ इसमें डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स दैट मीन्स इंसेक्ट्स की तो बात की जाती है, और यहाँ पे क्लिनिकली यूज एंटी माइक्रोबियल, क्लिनिकली ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स, सो सी इज द करेक्ट वन, राइट। आपको यहाँ से थोड़ा सा, जब देखो मैं भी आपके साथ ही यहाँ पे साथ के साथ ही कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से आंसर देख के तब कर रही हूँ, तो इसीलिए कई बार ये ऐसे हो जाता है। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा जब आप वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, तो मे बी आप सभी को ऐसे कट आउट, पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है, ठीक है, बट फिर आप फाइंड करोगे कि उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आप मार्क करोगे। हमारे को ए और डी का तो डेफिनेटली हमें पता था कि कट हो जाएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो रही है कि जब दो चीज़ों की सेम स्टार्टिंग हो रही दो ऑप्शन की, तो उनमें से एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पता भी लग रहा है इन दोनों में से, बी और सी में से ही कंफ्यूज करने का ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। अब इनमें से आप पैसेज के बेस पे देख लीजिए कि कौन सी वाली आपको ज़्यादा करेक्ट लग रही है, ओके। एंड वन मोर थिंग इज कैटरपिलर्स की जस्ट लाइक कौन सा था वो ट्री, एक ट्री के ऊपर क्वेश्चन 2024 में आई थिंक आया ना, फिग ट्रीज वाला ऑप्शन को क्वेश्चन नहीं था, समथिंग लाइक दैट, हाँ जी। तो ऐसे कैटरपिलर का भी मे भी कोई ऑप्शन आपको बन के आए क्वेश्चन, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, मे भी कहीं आपको हेल्प कर जाए, ओके। नेक्स्ट वन, isn't the following statement best reflect the crux of the above passage? In a robust democracy, reality, however inconvenient it may be, finds its expression both in speech of political leaders and the other social forms of assertion. The existence of the real has to be transparent, both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normatively responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. एक बार सभी ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। क्रक्स, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल, लास्ट में क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो सेइंग अबाउट दिस, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडल डेमोक्रेसी, सो दिस वन इज ओके. Fake news seems inherent in the life of an ideal democracy. There should not be any kind of restriction. This is something that is not correct कि कोई restriction ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तो वैसे भी नहीं है रियलिटी में भी। रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड, ये वाली भी नेगेटिव है। जब ऐसी स्टेटमेंट्स देखो आपको डायरेक्टली पता लग जाती हैं कि गलत है, कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो ये लास्ट में भी हमने बोला था कि मिल जाता है आपको क्रक्स वगैरह लास्ट में, तो यही चीज़ है यहाँ पे, सो ए इज़ द करेक्ट वन. Move to the next one, passage or most logical, rational, practical message. Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices. As consumers increasingly network their homes, the connected home device manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. Corporate marketers will have powerful incentives to observe and
Corporate marketers will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owners. और ऑप्शंस को पढ़ते हैं. Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in manufacturing sector. Knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and then helps in overall. गाइस एक बार ना मैंने जब ये पैसेज पढ़ा तो मैं बस रीड आउट ही कर गई, जो इसका मैसेज था वो नहीं समझ पाई. आई विल रीड इट इन हिंदी अगेन. आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए. ऊपर है या नीचे इनका 61 या हियर इट इज. आजकल अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन है. जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, संबद्ध कनेक्टेड घरेलू उपकरणों के निर्माता और सेवा प्रदाता घर को एक कॉरपोरेट स्टोर फ्रंट में बदलने के लिए हमारे अधिकांश व्यक्तिगत डाटा को हमारी सहमति से या सहमति के बिना एकत्रित करके लाभ के कम मार्जिन की प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे. कॉरपोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामियों की कार्य आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का अवलोकन करने हेतु प्रभावशाली प्रोत्साहन होंगे. ठीक है, अब आ गया समझ में. ठीक है, आप पढ़ते हैं इनको. नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लेड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर नहीं लगता उन्हें, उनका फ़ायदा होता है जब वो कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज रखते हैं. ठीक है, अगले भी पढ़ते हैं. नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वैसे यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं चल रही है. कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंपनीज मतलब कि उन चीज़ का चल रहा है. आगे भी देखते हैं. इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. दिस इज जस्ट अ सपोर्टिंग फैक्ट दैट वाज गिवन. ठीक है, बट इट इज़ नॉट द ओवरऑल मैसेज दैट इज गिवन हियर. दैट इज यू कैन आप उस चीज़ का जो आइडिया है ना वो लास्ट लाइन पढ़ के लगा सकते हो कि ओवरऑल जो बात थी वो किस बारे में थी. ठीक है, एंड सेकेंडली ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह की भी कोई चीज़ नहीं है. इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्राइवेसी रिस्क. नाउ अब देखो ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंटरकनेक्टेड, इट मीन्स सी ऑप्शन इज सेइंग कि ओवरऑल पैसेज इंटरकनेक्टेड डिवाइस के बारे में था और उससे जो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है उसके बारे में था. ये तो नहीं था. पर ठीक है, लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो उन्हें लॉस होता है उससे वो क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, नीड्स को, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट मतलब कि जो पर्सनल डाटा उससे अपना पर्सनल गेन वगैरह उस चीज़ के लिए वो यूज़ करेंगे उसके लिए. ठीक है, ये चीज़ थी लास्ट में. तो सी वाला तो नहीं है. नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स और फिर ये जो बात की जा रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दिस इज़ नॉट अबाउट दिस. ये भी कट गया. नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लेट्स, तो मैंने बात की थी यहाँ पे ये प्रॉफिट के बारे में ना कि एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ये भी कट जाएगा. अब बचा हमारे पास सिर्फ डिकी. डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में है प्राइवेसी रिस्क. यही तो बात थी ना, पर्सनल डाटा को गैदर करेंगे, उससे अपने प्रॉफिट को कवर करने की कोशिश होगी. सो डी इज़ द राइट वन. यहाँ पे कई क्वेश्चंस में आपको मे भी वो 100% करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं भी लग रहा हो तो भी यू हैव टू फाइंड आउट विच अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड द लास्ट वन जो हमारे पास बचेगा वही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको कई बार मिलता है. ओके, नाउ टू द नेक्स्ट वन. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट जब तक कई बार पैसेज आपको मे बी डिफ़िकल्ट मिल रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जब आप सिर्फ और सिर्फ रीड आउट कर जाते हो पैसेज को और उसका मीनिंग जो ओवरऑल वहाँ से डिराइव करना चाहिए वो नहीं कर पाते तो फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं, बार बार उसी को रीड करते हैं. ठीक है, उसके बजाय आप ये कर सकते हैं वहाँ पे कि आप हिंदी वर्जन एक बार पढ़ लो. मे बी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो नहीं समझ आ रहे होंगे बट जो एक हिंदी में आपको ये पता लग जाएगा कि ओवरऑल क्या आइडिया था. ठीक है, बाकी जो मेन वर्ड्स हैं वे तो आपको इंग्लिश में पता लग ही जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे भी कर सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम पहले जीएस का पेपर देते हैं. ठीक है, दोपहर काफ़ी गर्मी होती है, उसके बाद उस गैप के बाद जब हम वापस जाके बैठते हैं वहाँ पे तो मे भी ऐसा होता है कि हम पूरा अपना जो फोकस और पूरी जो एफिशिएंसी के साथ हम करना चाहिए ना वो नहीं हो पाता कई बार. ठीक है, तो आपके साथ अपना इलेक्ट्रोल वगैरह डाल के पानी रख सकते हो आप. ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि आप कहीं पे अटक गए ना तो कि वहीं पे आप थोड़ा सा पानी की सिप लीजिए. ठीक है, एक गहरी सांस लो, रिलैक्स करो. 1 ही सेकंड का काम होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बट इससे क्या होता है आपका वही क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा था वो आ जाता है एंड इट इज़
फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, उसको मैं पहले कर रही, वो नहीं हो रहा मुझसे, थोड़ा सा वेट किया मैंने, पानी पिया, उसके बाद दोबारा अगले क्वेश्चन को करके दोबारा उसको करो या फिर उसी वक्त करके देखो, तो वो मेरा हो गया था। ठीक है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक माइंड में ना एक ऐसा मतलब कि नेगेटिव एनर्जी सी हो जाती है कि फास्ट भागने वाला, कि जल्दी करो, टाइम कम है, ये सब चीज़ें जब हैवी होने लगती है ना, तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना आपको सीखना है। ठीक है, ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको क्लियर करने में, ना कि आपको एक बहुत ज़्यादा मास्टरी करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सीखना है। बट ये चीज़ें हमें लगती हैं कि ऐसे कुछ होता नहीं है, बट हम उस चीज़ से गो थ्रू भी हो जाते हैं ना, तब भी हमें आइडिया नहीं लगता कि हमारे साथ वहाँ पे हुआ क्या, तब तक कि आप थोड़ा सा उसके बारे में सुन नहीं लेते और थोड़ा सा सोच नहीं लेते ना, तब तक वो चीज़ें माइंड में जाती नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। ओके, 63rd क्वेश्चन है अबाउट द क्रक्स। लुक एट द पैसेज नाउ। ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। In rethinking growth, we need to focus on the current reality of a resource-constrained world. Resource incentive and in particular energy incentive process will need to make way for more efficient and resource-frugal development strategies. If we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of a sea of poverty. Okay. देखते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि ओवरऑल जो ये बात की ना, इसी लाइन से पता लग रहा होगा कि हमें इस तरह से वर्क करना है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ स्मॉल कुछ ही लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब हैं पुअर्टी के सी में। ठीक है, ये चीज़ है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल टू आवर ऑब्जेक्टिव अचीविंग हाई ग्रोथ, हाई रेट ऑफ GDP growth. This is not about the crux. Poverty eradication is not possible without rapid economic growth and consequent environmental degradation. गलत बात है कि बिना एनवायरमेंटल को डिग्रेड के, इकोनॉमिक ग्रोथ के, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये तो maintaining high environmental standards is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient, inclusive growth. यही बात की जा रही है। ठीक है, इसको रोकते हैं, अभी अगला देख लेते हैं। With large population, rampant poverty and the limited resource of today world, environmental degradation can't be prevented. ये तो वैसे ही गलत है। ये चीज़ें जब बोलते हैं ना कि अपने हाथ में होते हैं भाई ये सब चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब डिग्रेड तो हम खुद ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है कि कांट बी प्रिवेंटेड, ये वाली स्टेटमेंट आपको अब तो आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज़ें पढ़ते ही पता लग जाती है कि ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत मिलती है। सो सी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज 71st. Which of the following statement best reflect the most logical, rational message conveyed by the passage? Unlike religion and science, poetry does not possess or expect any belief in absolute truth. Those forces or individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. Truth usually does not admit any contradictions or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not of much use for poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, full of contradictions. Against the tyranny of truth, poetry remains a partition of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry proposes both humility and defiance. Okay. It is poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. By the way, it is not about the imperfections of humans. Humans के imperfections की बात नहीं थी, truth वगैरह से related है, तो you can mark it incorrect. Truth is revealed through science or religion, and poetry is anathema of truth. ये तो बात ही नहीं की जा रही थी यहाँ पे कि ट्रुथ जो है वो रिवील साइंस और रिलीजन से होता है, फिर भी आप इसको एक बार रुकते हैं। पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग्स, वेयर साइंस और रिलीजन आर अबाउट ट्रुथ। इन दोनों के ऑप्शंस का भी बताते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टाइरनी एंड
big or try. Poetry is a form of dynamic resistance. ना देखो, यहाँ पे बात की जा रही थी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो ये साइंस और रिलीजन्स में एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जाती है, दैट दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट, बट पोएट्री में थोड़ा सा मतलब कि उस चीज़ की बात होती है कि एब्सोल्यूट जो ट्रुथ होता है ना, मतलब कि सिर्फ यही चीज़, एक जो लाइन खींच दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा पोएट्री में नहीं होता। ठीक है, पोएट्री ट्रुथ और इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ बात की जा रही है। अब ये जो बाकी 3 ऑप्शन हमारे को गिवन है, एक बार इनका हिंदी वर्जन हम चेक करते हैं। सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है और काव्य सत्य, ये पोएटिक की बात होगी, के लिए अरुचिकर है। यहाँ पे बहुत बात करें कि जो पोएट्री थी उसमें सत्य अरुचिकर है, मतलब कि उसके अपोजिट बात की जा रही थी। यहाँ पे तो जो पोएट्री है, हाँ जी, जो पोएट्री है उसके मतलब कि एक तरफ से, उसकी तरफ से बात की जा रही है, ना कि अपोजिट में। ठीक है, तो ये है उसके अपोजिट वाला ऑप्शन, तो ये कट जाएगा। काव्य रोमानी काल्पनिक और भावना के विषय में है। ये देखो, जो ये बात की जा रही काल्पनिक और भावना, इमोशंस वगैरह से रिलेटेड नहीं था पैसे, जबकि विज्ञान और धर्म सत्य के विषय में है, तो ये भी एक उल्टी बात होगी। ये ऐसा तो कहा ही नहीं गया कि पोएट्री जो ट्रुथ है उससे रिलेटेड रिलेशन में बात नहीं की जा रही, तो ये अपोजिट हो गया जो पैसेज बता रहा था उसके। ठीक है, हिंसा, निरंकुशता और कट्टरता की दुनिया में काव्य यानी कि पोएट्री गतिशील विरोध का एक रूप है। गतिशील देखो, कट्टरता और निरंकुशता और यह हिंसा, जो मतलब कि ये बात की, देखो ये वर्ड्स आपको पैसेज में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट द थिंग इज बाकी 3 ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। सिर्फ हम कई बार क्या करते हैं, जैसे ये हिंसा, निरंकुशता और कट्टरता वाले वर्ड्स हमने देखे, बट दीज थिंग्स आर समथिंग दैट आर मतलब कि उस चीज़ में जो पोइट्स उसमें बात की जा रही थी हमारे को पैसेज में, उनसे रिलेटेड, जैसे कि एरोगेंस ऑफ पावर, वेल्थ वगैरह, ये सब जो बात थी। ठीक है, तो इन और ये बात वो भी तो थी ना यहाँ पे, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप वगैरह, ये सब चीज़ें, तो इन्हीं से रिलेशन में है। ठीक है, और बाकी तीनों, जब आप इन वर्ड्स को देख के, पता क्या होता है कि हम सबसे पहले इसी ऑप्शन को कट आउट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम तीनों में ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ठीक होगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख के इन्हीं में से कोई सा मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं कर रहा है, उस एक बार थोड़ा सा ये हिंट जो मिल रहा है ना उससे रिलेटेड वो देखते हैं। ओवरऑल ये 3 वर्ड तो दुनिया के बारे में, बाकी जो पोएट्री के बारे में ये चीज़ है कि गतिशील विरोध का एक रूप है। आई होप आपको इसमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रही हूँ आपको। देखो, बी और सी ऑप्शन तो अपोजिट है, जो हमारे को पैसेज भी गिवन है ना उसके अपोजिट है, बिकॉज दीज थिंग्स आर सेइंग कि दीज 2 ऑप्शंस आर इन द फेवर ऑफ साइंस एंड रिलीजन एंड अगेंस्ट की पोएट्री ट्रुथ के लिए है ही नहीं, ये चीज़ बोली जा रही है बी और सी में, बट पैसेज में इसका उल्टा दिया जा रहा है। ठीक है, एंड ए ऑप्शन में आप देख लीजिए कि ह्यूमन्स के बारे में थोड़ी थी, ह्यूमन्स के इम्परफेक्शन की तो बात ही नहीं की गई थी, तो इस बेसिस पे ए बी सी आप कट कर लोगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास बचेगा करेक्ट। में भी आपको पढ़ते हुए ये नहीं लग रहा कि ये करेक्ट है, बट फिर भी यही करेक्ट मिलेगा। ठीक, क्योंकि बाकी 3 में आप श्योर हो जाओ फिर कि वो गलत गिवन है, तो यही मिलेगा फिर आपके पास। ठीक है, फिर उसमें आप वैसे भी अगर आप तीनों को श्योरली आप करेक्ट इनकरेक्ट मार्क कर लोगे ना, तो फिर 4th वाले में आप कहीं ना कहीं वो लिंक भी ढूंढ लोगे कि वो क्यों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट द assumptions. Okay. The flower was not invented to please us. It flaunted its petals and spread its perfume to attract an insect. The insect carries the pollen from flower to flower so that pollen is not carried away by wind and thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. Okay. The author of passage believes that flowers are creations of nature's luxury के लिए तो नहीं है भैया। चलो आगे देखते हैं। Author of the passage does not believe in usefulness of flower except as things of beauty. ये तो बात ही नहीं, यहाँ पे तो ये चीज़ कह रही है कि जो ब्यूटी है और उसकी जो परफ्यूम, जो फ्रेगरेंस है, वो हमने उस चीज़ को, फ्लावर को उस चीज़ से कंडीशन कर दिया गया है, बट द फ्लावर इज़ नॉट ओनली फॉर दिस। जो फ्रेगरेंस और फ्लावर की ब्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक बाय प्रोडक्ट है।
और ह्यूमन का एक इन्वेंशन है। ओवरऑल उसका जो वर्क है नेचर में वो ये नहीं है, वो तो मैं अपना ऐड कर दिया, बट द थिंग इज़ जो फ्लावर की ब्यूटी है वो एक एज अ बाय प्रोडक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऑथर ये तो अपोजिट ही हो गया, कट आउट हो गया। सेकेंडली ऑथर ये बिलीव नहीं करता कि ये फ्लावर जो क्रिएशन नेचर की लग्जरी के लिए, नहीं नहीं भाई, ये चीज़ नहीं बोली गई है यहाँ पे, ठीक है। नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, लग्जरी इज समथिंग दैट इज टू प्लीज अस, राइट। एंड फर्स्ट लाइन इज सेइंग कि ये इन्वेंट इसलिए नहीं हुआ कि हमें प्लीज कर सके, ऑल राइट। सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, हो गए हमारे सारे कंप्लीट, ऑल आर डन। एंड आई होप, रियली होप कि इस वाले में आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे खुद भी कई क्वेश्चनों में हम रुके हैं, कभी हिंदी वर्जन हमने पढ़ के किया, ऑप्शंस को पढ़ा, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी हद तक ये आइडिया मिल जाएगा कि जहाँ पे आप अटकोगे, ठीक है, कई बार आपको सारे ऑप्शंस कहीं गलत लग रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आप 2 में अटक गए तो कैसे करना है, तो वो चीज़ इस वाले में काफ़ी हद तक हमने सॉल्व करी है उस चीज़ को, ठीक है। एंड अब हमारा 2025 का बचा है, नेक्स्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।